A very good morning to everyone present here. Firstly, on behalf of Department of Commerce, I, Dr. Rekha Lakhotia, Associate Professor and Culture in Charge, welcomes you all in IPS Academy. I must congratulate you all to excellent choice that you have made. You are now a part of an IPS Academy. It is an institution that strives for excellence in all the area. Before commencing the session, I would like to invite Premlata Gupta Madam, our principal, our guest, Mr. L.K. Tripathi sir, for garlanding Ma Saraswati. And all the faculty members, please come. IPS Academy maintain a climate where every student is encouraged to reach his or her full potential. As Oscar Wilde rightly said, success is a science. If you have the condition, you get the result. Our institute creates the condition and it is our job to do the rest. Life at IPS Academy is much more than regular academic activities. We focus on the overall development of our department and our students also. Following the Indian tradition, Atithi Devo Bhava, I would like to request our principal Premlata Gupta Madam to welcome Tripathi sir. And now I request Principal Madam to give brief introduction about IPS Academy. Honorable L.K. Tripathi sir, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स एंड न्यू कमर स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर, आई एक्सटेंड warm and heartiest welcome to all of you. IPS Academy, Indoor Professional Studies Academy. This is the full name of IPS Academy. It is a premier institute of Central India's largest educational hub premises also. IPSA is playing a major role to develop Indore as Central India's most preferred educational center. I also welcome our guest. Thank you, sir, for coming. I extend warm welcome from IPS Academy to you also. IPS Academy is sprawled in 60-acre lush green campus. It has 3 campuses and 2 more campuses, one in Saver and one in Jhabua. Here in core campus, in this present where we are all seated, is a core campus of IPS Academy. This campus having 16 colleges with more than 80 courses, having 500 teachers, more than 10,000 students, and it is honing an experienced educational assembly. The various institutes housed in separate aesthetically designed buildings
have state-of-art infrastructure with well-designed classrooms, laboratories, libraries. We have qualified, skilled and experienced faculty members. IPS Academy is NAAC accredited institute. Our Engineering and Management Institute of IPS Academy have autonomous status. Also, we stand reputed position among the best science and commerce colleges by various ranking agencies. The week Hansa India and India Today Commerce College of IPS Academy ranked 80th position at national level among top 500 colleges of India. At IPS Academy, it has been our endeavor to provide education to students that leads to multifaceted development of their innate talent, intellectual and physical capacity, and overall personality that imbibe into them cultural and national spirit, thus making them responsible global citizens and also very good human beings. For this, we offer NCC unit for girls, NSS Wellness Center. We have also state-of-art e-learning department with advanced ICT facility. I think in Indore, very few colleges have such type of ICT facility. I also welcome all of you to showcase your talent in our own radio channel. Apart from this, we IPS Academy have very big mess capacity of about 400 candidates. We have very good canteen, bus facilities. We have also offer you multi-facet platform where you can benefit of other facility like value-driven courses, certificate courses, diploma courses, which are running in some department like fashion designing, performing arts, placement. It is a continuous, rigorous training development regime, hones the communication, leadership and entrepreneur skill of student, which lead to unmatched placement in leading institute, industry and other sectors. The presence of IPS alumni in every nook and corner of the globe bears testimony to our Trump NEP, that is New Education Policy, has been implemented, which aims to all-round development of student, as it includes vocational subjects, entrepreneurship, field projects, which run other than basic curriculum and which lead to holistic development of student. Our next step to establish a global university where Indian spirituality, ethics and value meet Western science, technology and usher into new dawn humanity. Dear student, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उद्यमेन हि सिंहस्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बिना उद्यम किए, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं हो करता है, ऐसे ही यदि आप फोकस करते हैं और ऑनेस्ट इफ़र्ट करते हैं तो लाइफ में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। योजनाएं बनाएं और उनमें सच्चे ईमानदारी से अपने इफ़र्ट्स पुट करिए। जैसे कि एक
रोचक कहानी जो आप सभी ने सुनी होगी, थॉमस एडिसन अल्वा, जिसने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा दिया 27 जनवरी 1880 में। आपको पता है उन्होंने कितनी बार प्रयास किया था? उन्होंने 99 टाइम इफ़र्ट्स किए थे, तब जाके उनको ये सक्सेस मिली। उनके ऊपर एक जुनून सवार था जिसको आप लोग पैशन कहते हो। सपने वो देखे जो आपको सोने नहीं देते, तो जागते हुए सपना देखें, सोते हुए नहीं, और उसके लिए प्रयास करें। आपका पूरा भविष्य, आपके जिस टाइम पे आप एजुकेशन हासिल करते हैं, तरह तरह की विधाएं सीखते हैं, यदि आप सच्चे मन से अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको प्रयासरत होना पड़ेगा। और IPS एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। आप देख रहे हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और IPS में दी हुई जितनी भी फैसिलिटी है, डिप्लोमा कोर्सेस है, वैल्यू एडेड कोर्सेस हैं, आप उन सब का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपके आने वाले जीवन के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for your valuable words. These mean a lot for all of us. Madam, I request you to please welcome Shyam Sundar Palor sir, our next guest. Shyam Sundar Palor sir. It is our great pleasure that today we have Dr. Lakshmikant Tripathi sir with us. His qualification is MCom, MPhil, PhD and MBA. Sir has published approx 45 research papers in renowned journals. Previously, he was HOD at School of Commerce, DAVV. He was also in charge of minority sale in DAVV. He has a registered guide of commerce at DAVV, and under his supervision, 20 students awarded PhD. Very good. 20 students awarded PhD. Currently, he is a Dean Student Welfare at DAVV. Now I request Tripathi sir to say a few words about our new students. नमस्कार। पहले तो मैं आपके पेशेंस की सराहना करना चाहूँगा। इतनी देर बैठने के बाद भी आप चुपचाप सुन रहे हैं। अब कारण क्या है मुझे नहीं पता। IPS एकेडमी एक बहुत ब्रांड नेम है इस शहर का, और पब्लिक स्कूल का जो पैटर्न है वो IPS एकेडमी ने इंदौर शहर को दिया है। मैं IPS एकेडमी को इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो IPS एकेडमी में आपने एडमिशन लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी यहाँ पर आपको सुविधाएं उपलब्ध होंगी आप उनको उपयोग करेंगे। विशेष तौर पर IPS एकेडमी तो आपका स्वागत कर रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, और हम आपका आने वाले समय में बहुत सारे इवेंट कराते हैं। जैसे यूथ फेस्टिवल एक होता है, तो यूथ फेस्टिवल में क्या होता है कि कॉलेज लेवल पर पहले आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप उसमें जीतते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर आप वहाँ जीतते हैं तो स्टेट लेवल पर जाएंगे। स्टेट लेवल से जीतते हैं तो जोन लेवल पर जाएंगे। जोन लेवल पर जीतते हैं तो नेशनल लेवल तक जाएंगे। और अगर आपने देखा हो, कपिल शर्मा नाम का एक व्यक्ति आता है, वो यूथ फेस्टिवल की ही देन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कला के क्षेत्र में अलग अलग अपना नाम
परचम फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ फेस्टिवल से निकले हुए लोग हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, कोई इंदौर यूनिवर्सिटी से है, कोई पंजाब से है, कोई कहाँ से है। तो आप लोग भी, हम एक नोटिस देंगे रेखा मैडम, तो आप इनको सर्व करें। तो सबसे पहले मैं इस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता मैडम, प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा लखुटिया मैडम, मीनाक्षी मैडम, चंदेल मैडम, और आज हमारे गेस्ट हमारे साथ जो उपस्थित हैं श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट जी, जो एक राष्ट्रीय कवि हैं। अभी आप जब उनको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बड़े बड़े जो कवि के मंच होते हैं और टीवी चैनल होते हैं, वहाँ पर वो अपनी कविताएं पढ़ते हैं। आज आपको ये अवसर मिला है, मैं चाहूँगा कि सर बाद में आपको सुनाएंगे। तो मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ कि कभी भी आप देखिए जीवन में आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला है। आज मैं सुबह उठा, दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहा था, उसमें चेतन भगत का एक लेख है और उन्होंने दिया था कि 2021 में लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया और सबसे अधिक रेशो सुसाइड करने का था जहाँ पर सबसे अधिक जेई और नीट की तैयारी करते हैं। उस शहर का नाम आप जानते होंगे, उसका नाम कोटा है। तो मैंने जब देखा उसको, तो मैं चूँकि कॉमर्स का टीचर हूँ, मुझे देख के ऐसा लगा कि सभी डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनते ना, और सभी डॉक्टर को नौकरी मिल गई ऐसा भी नहीं है, सभी इंजीनियर जॉब में वो भी नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक चर्च था, वहाँ एक बहुत बड़ा बेल घंटा लगा रहता, अगर आपने देखा हो। चर्च देखा कभी? फिल्म में देखा होगा बेटा। तो वहाँ एक बहुत बड़ी बेल लगी रहती है। तो वहाँ एक बंदे की नौकरी थी कि बेल बजाना उसको रोज, वो रोज बेल बजाता था। अचानक वहाँ एक पादरी चेंज हुए और पादरी ने तय करा कि यहाँ जितने भी लोग काम करते सबका क्वालिफिकेशन चेक करिए। तो जब क्वालिफिकेशन चेक हुआ वहाँ पर, तो सभी लोगों की अलग अलग क्वालिफिकेशन थी, लेकिन वो जो बेल बजाता था, घंटा बजाता था, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। पादरी ने कहा यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं और यहाँ अनपढ़ लोगों को नहीं रखना है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकलने के बाद उस सीढ़ियों में जाके बैठ गया और वो देखने लगा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसने ऑब्जर्व कर लिया उस समय कि लोग, जितने भी लोग यहाँ हैं, मैक्सिमम इसमें तनाव में रहते हैं लोग। तो उसने क्या करा, चर्च के बाहर एक जो है चाय सुट्टा की दुकान खोल दी। नाम सुना होगा ना आपने, MBA चाय वाला और ये इस तरह से। और वो देखा उसने कि जैसे लोग चर्च में जाते हैं तनाव में और वापस आते हैं, सब लोग चाय लेते, चाय के साथ और भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं आजकल, वो भी लेते और चले जाते। अब उसने देखा कि ये चर्च के बाहर मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो उसने क्या करा, दूसरी चर्च के सामने भी ऐसी एक चेन बना दी पूरी। क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे बिजनेस बहुत मिलने वाले हैं और डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कमाएंगे हम लोग। अब उसने ऑब्जर्व किया तो जितने भी वहाँ अमेरिका के चर्च थे, जहाँ पर भी जिस शहर में रहता था, जगह जगह उसने बहुत सारे स्टॉल अपने खोल दिए MBA चाय वाला जैसा, और चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। युवा आते, बुजुर्ग आते, तनाव में आते, कैसे भी आते, और उसका बड़ा अच्छा दुकान चलने लगा। अब वो बड़ा भारी बिजनेसमैन बन गया। अब जैसे ही आदमी बड़ा आदमी बनता है, टीवी चैनल वाले पहले पहुंच जाते हैं। सब टीवी चैनल वाले वहाँ आ गए, अरे भाई साहब आपका तो बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया और आपने बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ये है वो है। हमने हाँ ठीक है, सब ठीक है, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? तो उसने कहा भाई साहब मैं कोई यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, ना मैंने कोई पढ़ाई की है। तो उसने कहा नहीं, इतना बड़ा बिजनेस चेन आपने खड़ा कर दिया और इतना बड़ा बिजनेस, इतनी अच्छी आपकी कैपिटल खड़ी हो गई है, आपने जरूर कोई MBA किया होगा, कोई अच्छे कॉलेज से किया होगा, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से किया होगा। उसने कहा नहीं भाई साहब मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो बोले फिर ऐसा आश्चर्यजनक कैसे हो गया कि आपका इतना बड़ा बिजनेस हो गया? बोले साहब मैं अगर पढ़ा लिखा होता ना तो आज भी घंटे ही बजाता रहता। तो जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वो किसी को नष्ट करने नहीं आते, परेशानियां जो होती हैं वो कभी नष्ट करने नहीं आती, वो हमेशा आपको नया रास्ता देने के लिए आती है। तो आप सब लोग, जितने भी लोग कहते ना कि साइंस पढ़ते रहे होंगे, अब कॉमर्स में आ गए, तो सब लोग घबराना नहीं, हम सब उससे बेहतर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप सब बेहतर करने के लिए आए हैं। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, शेक्सपियर, नाम सुना होगा आपने, दुनिया के बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग जन्मजात समृद्ध होते हैं, कुछ लोगों को समृद्धता थोपी जाती है और कुछ लोग समृद्धता को अर्जित करते हैं। जैसे महानता बोलते हैं, समृद्धि बोलो या महान बोलो,
तो कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, कुछ लोगों में महानता थोपी जाती है और कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं। अब शेक्सपियर से लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए राजा उनका प्रतीक होता है जो जन्मजात महान होता है। अब मुकेश अंबानी के घर में अगर कोई पैदा हो जाएगा तो जन्मजात महान है, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा दूसरे वो लोग होते हैं जिनमें महानता थोपी जाती है। अब राजा है, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, रानी बन गई, तो ऑटोमेटिक वो भी महान हो गई, तो इसमें महानता थोप दी। अब मुझे पता नहीं जो नीता अंबानी हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो स्कूल टीचर थी और अच्छी मैरिज हो गई तो आज वो महानता उन पर थोप दी गई। और तीसरे वो लोग होते हैं जो महानता को अर्जित करते हैं। अगर आप शतरंज का खेल खेलते हो तो प्यादा जो है रानी बनने से 6 कदम की दूरी पर होता है। हम में से 80% लोग सब वही प्यादे हैं जो 6 कदम की दूरी तय करने के लिए रानी बनने के लिए प्रयासरत हैं, यानी महानता अर्जित करने के लिए प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर आप सब लोग अपने प्रयास करेंगे और महानता को भी प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं दूसरी चीज़ें और भी बताने के लिए आपके बीच आया हूं कि मैं कल्चरल इवेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटी में रैगिंग का भी इंचार्ज हूं। अगर आपने कभी रैगिंग की तो उसके पनिशमेंट भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके कोर्स से बाहर कर देंगे, आपको परीक्षा नहीं देने देंगे, और ज़्यादा खतरनाक रैगिंग कर दी तो पुलिस केस भी बनाते हैं हम लोग, उसकी बाकायदा जांच करवाते हैं। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, पर रैगिंग करना अपराध है, आप इससे बचें। कोई भी अगर आपके साथ रैगिंग करता, अभी आप फर्स्ट ईयर के लोग हैं, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। वैसे IPS एकेडमी एकमात्र संस्थान है जिससे आज तक रैगिंग कभी रिपोर्ट नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है आप भी उसको रिपोर्ट नहीं होने देंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी अनुशासनहीनता कारण होता है। जीवन में अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कोई पतंग आकाश की बुलंदियों को तभी छू पाती है जब डोर के डिसिप्लिन में रहती है। किसी नदी का बहना तभी अच्छा लगता है जब 2 किनारे के बीच में कलकल बहती है। किसी ट्रेन की गति तभी अच्छी लगती है जब 2 पटरियों पे चलती है। जैसे ही डोर का डिसिप्लिन पतंग तोड़ती है, कचरे के ढेर में मिल जाती है। जैसे ही नदी 2 किनारे का डिसिप्लिन तोड़ती है, सुनामी बन जाती है। और जैसे ही ट्रेन अपनी पटरियों का डिसिप्लिन तोड़ती है, दुर्घटना बन जाती है। तो नदी का बहना, पतंग का उड़ना, ट्रेन का चलना, इसकी आज़ादी तभी तक है जब वो अनुशासन में रहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग रैगिंग से बचें और अपने अनुशासन में रहें। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें अगर आपको आगे उपलब्धियां अर्जित करना है। और आज के समय में मैंने युवाओं को देखा है, लोग वो नहीं सुनते जो हम सुनाना चाहते हैं, लोग वो सुनते जो वो सुनना चाहते हैं। अभी संगीत का कार्यक्रम हो तो हमें अच्छा लगेगा, उम्र ही ऐसी है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कोई भी उठा लीजिए, चाहे मोबाइल उठा लीजिए, चाहे फ्रिज या कूलर, टीवी उठा लीजिए, सभी के वर्जन पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप सब युवा कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी से ज़्यादा बेहतर हैं और आप ज़्यादा अच्छा उन्नति करने वाले हैं, इस देश को कहीं ना कहीं अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। आपको लगता नहीं है ऐसा? कुछ क्रिएटिव होता है कि नहीं? जैसे अभी आजकल बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि रोजगार के पीछे मत दौड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलिए। और चाइना के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या? एंटरप्रेन्योरशिप है। वहाँ कोई सरकारी नौकरी के आवेदन बहुत ज़्यादा नहीं करता, और वैसे भी सरकारी नौकरियों में जगह बहुत सीमित होती है। 5-5 बार लोग लगे रहते हैं और सिलेक्शन नहीं होता तो भी कोचिंग क्लास चलाने लगते हैं। जितनी कोचिंग क्लास आपके भंवर कुआं यहाँ चलती हैं, वो ज़्यादातर लोग, और कहते हैं ना कि अगर जो सक्सेस हो गया उसको पढ़ो तो बहुत कुछ सीखते नहीं है। जितने फेलियर होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं, क्योंकि वो बता पाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, कैसे प्रॉब्लम हुई, कैसे क्या हुआ। और ये मेरे घर पे मैंने देखा। मेरी बेटी 12th में पढ़ती थी, तो उसने जेईई की एग्ज़ाम दी और उसका 8000 रैंक आया। अब मैं तो कॉमर्स का टीचर, मैंने उसको बोला बेटा कोई IIT मिल रही है 8000 रैंक पे तो ले लो, क्योंकि मेरे जो मित्र हैं वो कह रहे थे कि एक बार IIT में सिलेक्शन हो गया दोबारा कोई गारंटी नहीं है, अगली बार और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे समझ में आ गया कहाँ कमी है। उनके टीचर ने भी कहा कि हमको समझ में आ रहा कहाँ कमी है, इसको फिर से आप ड्रॉप दिला दीजिए। मैंने ड्रॉप दिलाया
बाद में वो 570 रैंक लाई, IIT दिल्ली से उसने बीटेक किया और अभी अमेज़न में कैलिफोर्निया में जॉब कर रही है वहाँ MS करने के बाद। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप अगर एक अवसर चूक जाओ कभी भी तो हताश मत होइए, डटे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आपका भविष्य वहीं से आता है जहाँ पर आप अपना समय व्यतीत करते हो। स्वामी जी को आप पढ़िए, जीवन में कभी आप नर्वस होएंगे नहीं। उनके हर विचार में बहुत पोटेंशियल है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ है अपने करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपका भविष्य वहीं से आता है जहाँ आप अपना समय व्यतीत करते हो। आपको जो बनना है आप उन लोगों के बीच रहिए। कहते ना कि आप अपने 4 मित्रों का नाम बताइए, हम बता देंगे आप कौन है। अगर आपने बोला धोनी और ये सब मेरे मित्र हैं तो हम बता देंगे आप प्लेयर हैं। यदि आप बताएंगे कालू मीलू और ये सब हमारे दोस्त हैं तो आप समझ सकते हैं आप क्या हैं, है ना। कोई कलाकार हैं, बोले साहब आजकल हम रणबीर कपूर के साथ रहते हैं आजकल, तो हो सकता है आप डायरेक्टर हो या फिल्म अभिनेता हो या अभिनेत्री, ये जो भी कुछ है। तो कहने का अर्थ है कि 4 मित्र बताइए, हम बता देंगे आप कौन है। उसमें कोई भविष्य नहीं लगता है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप जो भी बनना चाहते हैं आप ऐसे लोगों के साथ रहिए। उन्होंने एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी है, एक तालाब था, उसके बॉटम में बहुत सारे कीड़े रहते थे। तालाब का बॉटम था, उसमें बहुत सारे कीड़े रहते थे। अचानक एक कीड़ा बॉटम से निकलकर पानी के ऊपर आ गया और वो अंदर लौट के नहीं गया। तो वहाँ जितने कीड़े रहते तालाब के बॉटम में, सब में पंचायत होने लगी। ये आदत है, अपने बीच में से कोई ना आए तो पंचायत पहले होती है, ये क्यों नहीं आया, कहाँ गया होगा, मस्ती मज़े ले रहा होगा, कुछ ऐसे। तो सब कीड़े बैठे और पंचायत करने लगे कि ये जो कीड़ा निकल के गया था गया कहाँ, कहीं घूमने निकल गया। तो उन्होंने सबने आपस में तय करा कि अब हमारे बीच में से कोई भी ऊपर जाएगा तो लौट के आगे बताना अनिवार्य है कि आप कहाँ गए थे। तो उसमें से एक कीड़ा जो है बाहर निकला, तालाब के बॉटम में से बाहर आया। जैसे उसको हवा लगी, पानी लगा, धूप लगा, तो सुंदर से पंख आ गए उसके और वो कीड़े से तितली बन गया। दोबारा बताने के प्रयास करने लगा कि मैं जाऊं अंदर जाके बताऊं कि मैं क्यों यहाँ चेंज हुआ, लेकिन वो जा नहीं पाया अंदर। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि आप हमेशा उन लोगों के बीच बैठिए जो आप बनना चाहते हैं। आप उन लोगों को सोसाइटी ज्वाइन करिए जिनके बीच आप रहना चाहते हैं। अगर आप ये तय कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। देखिए ये जो कॉलेज की शुरुआत होती है ना, यहाँ बहुत सारे आपको मित्र मिलने वाले हैं। कोई कहेगा चलो पार्टी बनाते हैं। मैं हर साल जांच करता हूँ, हर साल कुछ ऐसे केस हमारे पास आते हैं जो फ्रेशर जो है नई जगह जाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, फिर हम उसकी जांच करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको वीडियो दिखाते हैं, देखिए आपकी बच्ची क्या कर रही है, देखिए आपके बेटा क्या कर रहा है। प्लीज़ आप सब लोग जो है अपने कल्चर का ध्यान रखिए, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखिए। दुनिया में आनंद लेना बुरी बात नहीं है, पर अपनी परंपराएं, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको कायम रखते हुए करिए। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी स्कूल ऑफ कॉमर्स में, तो उसमें बड़ा बवाल मचा। कुछ नहीं, वो प्रिटेंड कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, और वो नाटक को रियल में दिखाकर मीडिया वालों ने उसको प्रेजेंट कर दिया। जब हमने बच्चों से पूछा तो बड़े मासूम थे, बोले हम तो ऐसे ही मज़े मज़े में कर रहे थे। तो मज़े मज़े में सज़ा बन जाती है, तो आप प्लीज़ मज़े मज़े में भी ऐसा कुछ ना करें। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपके बीच ज़रूर आऊँगा और बहुत सारी बातें करूँगा। कुछ एक मीटिंग अर्जेंट आ गई है तो इसलिए मुझे तो मैं हमारी प्रिंसिपल मैम से निवेदन करती हूँ कि सर को एक मोमेंट हो, प्लीज़ मैम, टोकन ऑफ लव फ्रॉम IPS एकेडमी। हमारे बीच अगले अतिथि के रूप में मौजूद है राष्ट्रीय कवि डॉक्टर श्याम सुंदर पलोड़ सर। इनके लिए इतना ही कहना चाहती हूँ कि जुबां से बात निकलकर कलाम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमान हो जाए, करो तो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, तुम्हारे काम से शहर का नाम हो जाए। ये पंक्तियाँ पूरी तरह से चरितार्थ होती है हमारे अगले अतिथि श्याम सुंदर पलोड़ सर पर। डॉक्टर प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ वर्तमान में संस्कार कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। इनकी शिक्षा के कई आयाम रहे। इन्होंने M.Com किया, MPhil, PhD, MBA, और ये एक राष्ट्रीय स्तर के कवि भी हैं।
इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये माहेश्वरी पत्रिका समाज संगठन के सह संपादक के रूप में लगभग 3 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में संपूर्ण धार जिले में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। इंदौर के लोकल टेलीविजन चैनल OTG पर जनमंच, चुनावी चर्चा तथा हमारे मेहमान कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर चुके हैं। आकाशवाणी इंदौर से अब तक इनकी 40 से अधिक वार्ताओं और भाषणों का प्रसारण हो चुका है। कई शोध पत्रों का ये वाचन कर चुके हैं। विभिन्न अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका में भी सर रह चुके हैं। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी ओजस्वी वक्ता प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़, डॉक्टर श्याम सुंदर पलोड़ को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। एक राष्ट्रीय स्तर के कवि के लिए उसी तरह की जोरदार तालियां होना चाहिए। सभागार में उपस्थित IPS कॉलेज की प्रिंसिपल, बेटा जा रहे हो? जल्दी आना। कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा सा अनुशासन मुझे भी बनाते आता है। मैं खुशनसीब हूँ कि इस सभागार में आदरणीय प्राचार्य प्रेमलता गुप्ता मैडम की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय और मेरी बहुत पुरानी मित्र डॉक्टर रेखा लखोटिया जी की उपस्थिति में मेरी पुरानी मित्र योगिता चंदेल भी यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी उपस्थिति और साक्षी में इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और पॉपिंस की तरह गोल मटोल चेहरों के सामने अपनी बात की अभिव्यक्ति रखने का मुझे अवसर मिला। हाँ बेटा, सब वाह 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 में ही मजा आएगा। मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिंदगी में जो कुछ हासिल करना है वो इस मुकाम से ही हासिल किया जा सकता है। अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी बताकर गए। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ढेर सारी बातें प्रेरणात्मक रूप से अनुशासित रहने के लिए, नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए कहीं। बेशक निसंदेह उन बातों का सार तत्व यही था कि बेटा एक बार क्या हुआ, एक गांव का कुत्ता मुंबई आया तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए उसकी जाति के बहुत सारे कुत्ते आए। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों को देख के पूछ ली, दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं। तो मुंबई के कुत्तों ने भी गांव के कुत्ते को देख के पूछ ली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों से कहा कि भैया ये हम सारे कुत्ते तो दाएं बाएं बाएं दाएं पूछ हिलाते, मगर तुम ये मुंबई के कुत्ते ऊपर नीचे पूछ क्यों हिलाते? तो मुंबई के कुत्तों ने गांव के कुत्ते से कहा, बेटा थोड़े दिन मुंबई रह जाएगा तो तू भी ऊपर नीचे पूछ हिलाने लग जाएगा, क्योंकि मुंबई में इतनी जगह ही कहाँ है कि दाएं बाएं बाएं दाएं पूछ हिलाई जाए। बेटा जिस तरह से मुंबई से जगह सिमटती चली जा रही है, उसी तरह से हमारे हृदय से आचरणों की मर्यादा, नैतिकता, शुचिता, अनुशासन और संस्कार सिमटता चला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सिमटाव को फैलाव में तब्दील करने के लिए IPS एकेडमी के ये नौजवान साथी बेशक तत्पर, तैयार और उत्सुक रहें। इस इंडक्शन प्रोग्राम की ये ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि देखो क्या है बेटा, कॉलेज में मैं भी पढ़ाता हूं, मुझे इस पीढ़ी के नौजवानों के सारे फलसफे मालूम है। हाँ, मजाक नहीं कह रहा, हास्य का कवि हूँ। मुझे वो चोंचले भी मालूम है कि आपको किस तरह से मैं अपनी गिरफ्त में कर। क्या है बेटा, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने गणित का सवाल पूछ लिया एक छात्र से। मैंने कहा बता, एक किसान एक खेत को 15 दिन में जोतता है,
तो 2 किसान उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोले सर आपका दिमाग खराब है क्या? खेत जब एक बार जोत चुका है तो जोतने की जरूरत क्या? इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा बेटा हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं ना तो चीन में उतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगले दिन पट्टा कॉलेज में आया तो टेबल पे खड़े होकर जोर जोर से मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले चीन में बच्चे पैदा कर रहा है। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। मैंने कहा बता पैसिफिक महासागर कहाँ स्थित है? बोले सर मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा टेबल पे खड़ा हो जा। बोलो सर यहां से भी नहीं दिख रहा। इतने टैलेंट। मेरे कॉलेज की एक बस चलाता हूँ, संस्कार कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहां की एक बस है। बस में एक साइड लड़के बैठते हैं, एक साइड लड़की बैठती है। बस आगे बढ़ती है, स्पीड ब्रेकर आता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, इधर का लड़का उछल के इधर की लड़की पे। लड़की बोलती क्या कर रहे हो? बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। इतने टैलेंटेड, सबसे ज्यादा टैलेंट। अच्छा मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्यों होमवर्क क्यों नहीं करके आया? बोले सर लाइट नहीं थी। मैंने कहा लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। बोले माचिस नहीं थी। मैंने कहा माचिस कहाँ थी? बोले पूजा घर में रखी थी। मैंने कहा पूजा घर में से उठा लेता। बोले नहाया नहीं था। मैंने कहा नहाया क्यों नहीं था? बोले पानी नहीं था। अरे मैंने कहा पानी क्यों नहीं था? बोले मोटर चालू नहीं थी। अरे मैंने कहा मेरे बाप मोटर क्यों नहीं चालू थी? बोले वही तो रो रहा हूं कि लाइट नहीं थी। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच में यदि मुझे अपनी अभिव्यक्ति देना है तो पता है कि आपकी सांसें कहाँ बसी है। उन सांसों को निकाल के बाहर मैं आपको एक मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूं। देखो बेटा, हंसाने के लिए तो जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, मगर ये हंसाने का मैंने प्रकल्प क्यों शुरू किया? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? इसने देखा है, बहुत टैलेंटेड है। हाँ मजाक नहीं कह रहा हूं। मेरे घर आया, मेरी पत्नी ने गिलास दिया दूध का, बेसिन में ढोल दिया, फिर अगला गिलास दिया, फिर नाली में ढोल दिया। पत्नी ने कहा कि दूध पीता क्यों नहीं है? बोले दूध में मक्खी है। बोले चश्मा निकाल के देख, मक्खी तेरे चश्मे के कांच पे है। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट। हंसने का वरदान परमात्मा ने केवल इंसान को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? और आदमी यदि हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो गधा हो गया है। औरत मुस्कुराना बंद कर दे तो समझ लेना कि वो भैंसत्व की ओर प्रयाण कर रही है। इसलिए हंसते खिलखिलाते हंसते हुए कटे ये जिंदगी तो अच्छा है, क्योंकि आंसुओं में गम नहीं बहा करते, और गम के बादल छटेंगे तो खुशी आएगी, क्योंकि सुख दुख संग नहीं रहा करते। इसलिए हंसते मेरे को आदरणीय डॉक्टर रेखा लखोटिया जी ने एक काम दिया है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का, क्योंकि आंखों में आंसू देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदार ही काफी है। चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई कर देते हैं, करने को हिसाब पाई पाई नहीं देते हैं। आज करेंगे पिताजी वसीयत दौलत की, इसलिए इकट्ठे हम चारों भाई नहीं रहते हैं। जब समाज में ये स्थिति हो तो हम जैसे लोगों को कहना पड़ता है कि देखो बेटा, इतने बड़े कोरोना के काल में लोगों की हंसी गायब हो गई। तब हमने जब कोरोना के बाद वापस से मंच संभाला तो कहा कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। इसलिए उस हंसी को, उस खुशी को बरकरार देखो। हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और उस हंसने के उस फलसफे को मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं द्विगुणित होती है। आपके रक्त का संचार जब पूरी तीव्रता के साथ बढ़ता है तो आपके अंदर हृदय में
बहुत सारे अवसाद दूर हो जाते हैं, बहुत सारे विषाद दूर हो जाते हैं केवल एक हंसी के कारण। इसलिए क्योंकि क्या है, टेंशन बहुत है। संसद के सत्र से लगा के प्रेमिका के पत्र तक टेंशन ही टेंशन। मैं तो घर से निकला तो जुम्मन चाचा सिर पे हाथ धर के बैठे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले यार डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है। मैंने कहा किस बात का टेंशन है? बोले एक न एक दिन मैं मरूंगा। और मैंने कहा चाचा इसमें कौन सी नई बात है, जो बना है वो फना है। अरे तुम किस बात का टेंशन पाल रहे? बोले नहीं मैं सोच रहा था कि जो आखिरी में मरेगा उसको कब्रिस्तान कौन ले जाएगा। फोकट ही टेंशन। वो पाकिस्तान का टेंशन ले लिया। अभी 3-4 छोरे मेरे पास आ गए, वो सर और हम आ रहे थे तो पाकिस्तान का। अरे मैंने कहा उस पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना यार, जिसके पूर्व वजीर आजम को हमारे मोटा भाई का सपना आ जाए तो रात की 2 बजे नींद में चौंक के उठ जाता है। और उस पाकिस्तान का क्या टेंशन पालना है यार। उसका जितना कुल रक्षा बजट है इतने की तो इंदौर के गोराकुंड चौराहे पे छोरे चिलम फूंक देते हैं। फोकट ही टेंशन। अब जब भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे मुर्गी ने अंडा दिया, लड़ने लगे दोनों देश के सैनिक। बोले अंडा हमारा, अंडा हमारा। एक रास्ता निकाला गया, जो भी सैनिक विरोधी सैनिक को 1 मिनट में सबसे ज्यादा चनकट धरेगा, अंडा उसका। पहला नंबर अपने भारत के सैनिक का आया। उसने भी पट्टे ने 1 मिनट में 32 चाटे मारे। अब पाकिस्तान का सैनिक बोला भाईजान मेरे को आपको 1 मिनट में 33 चनकट धरना है। बोले काहे के चनकट धरना, अंडा ले जा। अपनी देशभक्ति तो कैसे भी हो सकती है, इसलिए उस देशभक्ति के हाँ क्या हुआ, किसके पास अंडा आया। टेंशन मत पालो। मैं तो यही कहना चाहता हूं, टेंशन मत लो और टेंशन में रहो आप लोग। बेटा उस जिंदगी के, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पतंग की बात बोली उन्होंने, बहुत अरे अलग अलग उदाहरण दिए, नशे की बात बोली। एक बात जीवन में याद रखना, मैडम ने शुरू किया था, सपने की बात बोली थी आदरणीय प्राचार्य। देखो वो उन्होंने बहुत अच्छी बात, एक बात ध्यान रखना बेटा, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम साहब का बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसलिए सपने देखना शुरू करो। हालांकि सपने तो अंधे को भी आते हैं मगर उसको दिखाई नहीं देता, फिर भी वो अपनी तीसरी आंख की ताकत से उन सपनों को साकार करने के लिए जितना प्रवृत्त होता है। हम चाहते हैं आप वो नौजवान साथी हो जो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे बेशक आपका सपना पूरा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, करियर का मतलब लोग बोलेंगे, पूछोगे तो कि बोले नौकरी पेशा करना, रुपये पैसे कमाना। मेरी दृष्टि में करियर का मतलब कभी भी नौकरी पेशा करना या रुपया कमाना नहीं होता है। करियर का एकमात्र अर्थ है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आपने एक 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें एक किरदार ऐसा था जिसके परिजन उसको बनाना कुछ चाहते थे और वो बनना कुछ चाहता था। उसकी संतुष्टि फोटोग्राफी में थी। बस वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि करियर वही कारगर है जो आपको संतुष्टि प्रदान करता हो। इसलिए करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो सपने देखता है और उन सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ता है, लक्ष्य उसी का कामयाब होता है। और बेटा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम अपने दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अर्जुन को चिड़िया की आंख, मछली की आंख लक्ष्य के रूप में दिखाई दे रही थी। उसने उस मछली की आंख को निशाना साधा, उसके सामने उसके सिवाय कोई लक्ष्य नहीं था। हम लक्ष्य एक बनाएं लेकिन उसको पूरा करने के लिए दृढ़ हो जाएं। अब अगली बात बता रहा हूं बेटा, दृढ़ प्रतिज्ञा। जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, संकल्पवान होता है, दुनिया में उसके लक्ष्य को दुनिया की कोई ताकत प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। आपको बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं। मैं हमारे देश में
एक किरदार हुआ, कहते हैं ना, मां ममता मई होती है, पुत्र को छाती से लगाए रखती है, मगर वक्त आता है तो पुत्र को छाती से नहीं बल्कि पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार थामकर, घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर 1400 अंग्रेजों के नरमुंडों को काट देने में तो तनिक संकोच नहीं करती, वो झांसी की रानी बन जाती है ना। इस देश में लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत सारे 8 साल का बच्चा जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है, देखकर दुखी होता है, वहां से एक मुट्ठी माटी की उठाता है, एक बोतल में भरता है, माथे पे धरता है और संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक जनरल डायर से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला नहीं लूंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। 8 साल की उम्र में लिया गया संकल्प सरदार भगत सिंह महज 21 साल की उम्र में पूरा कर देते हैं। इसको कहते हैं संकल्प। हमारे यहाँ एक महाभारत में किरदार हुआ है द्रौपदी। एक बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा संकल्प को यदि दृढ़ता के साथ कोई प्रतिपूर्ति कर सकता है तो इस देश की नारी है। मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कह रहा बेटा। अपने क्या एक मैडम इस मंच के बीचों बीच एक तराजू लगा दे और एक पलड़े पे नर को बिठा दे और एक पलड़े पे नारी, तो बताओ कौन भारी? नर में तो कोई मात्रा ही नहीं, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस। जबकि नारी में 2 मात्राएं लगी हुई है। एक न में आ की मात्रा लगी है, एक र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जो न में आ की मात्रा लगी हुई है वो नारी की आन बान मान मर्यादा का प्रतीक है। जो र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो नारी की घूंघट का प्रतीक है, नारी की शर्म का प्रतीक है, नारी की लज्जा, हया, ममता, समता का प्रतीक है। इतने सारे प्रतीकों वाली नारी, जिसके चिंतन में चंदन की चिंगारी और मनन में माया मोह को मथने वाला मादा होता है। बेशक वो नारी जब ठान ले, हमारे यहाँ महाभारत काल में एक किरदार था द्रौपदी। 14 साल द्रौपदी ने अपने बाल नहीं बांधे क्योंकि संकल्प लिया था जब तक दुष्ट दुशासन के रक्त से केशों का प्रक्षालन नहीं करूंगी तब तक इन केशों को बांधूंगी नहीं। 14 साल वन घूमती रही। आजकल की छोरियों के तो 1-1.5-2 फुट के बाल होते हैं। उस जमाने में 14-14, 15-15 फुट के बाल झाड़ू निकालती हुई चलती थी बाल से, लेकिन बांधे नहीं। और जैसे ही भीम ने दुशासन को चीरा, उसके खून से बाल धोए, उसके बाद बाल बांधे। इसको कहते हैं संकल्प। पंजाब में एक राजा हुए थे, महाराजा रणजीत सिंह। भारत के सोमनाथ का मंदिर तोड़कर एक दुष्ट सोना लूट कर हाथियों पर, ऊंटों पर लाद कर ले गया था, पता है ना, मोहम्मद गजनवी। उसके 200 साल बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह उस सोने को लेने के ले जाते हैं संकल्प लेकर। आखिर 80 मन सोना वापस लाते हैं। 40 मन सोना आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुशोभित है और 40 मन सोना काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में लगा हुआ है। और तो और वो एक चंदन का दरवाजा भी लाते हैं। जिस किसी को देखना हो वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वो दरवाजा भी देख सकता है। इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा। वो इस साल 350वीं जयंती मना रहे हैं हम छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज की। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में संकल्प लिया था हिंदू पद पातशाही की स्थापना का और केवल 32 साल जिए, अपने संकल्प को पूरा करके गए। इसको कहते हैं संकल्प। आपने यहूदियों का नाम सुना होगा, इजराइल उनका देश। 1800 साल यहूदी गुलाम रहे, पूरे दुनिया में फैल गए। एक यहूदी दूसरे यहूदी, सुबह हम लोग मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, सलाम वालेकुम बोलते हैं। एक यहूदी दूसरे यहूदी से जब कहीं भी मिलता था एक ही बात करता था, अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। शादी ब्याह जश्न पार्टी जाम से जाम टकरा देते, फोड़ देते, लेकिन एक ही बात, अगली बार यरूशलेम में जश्न मनाएंगे। 1800 साल की गुलामी के बाद जैसे ही इजराइल आजाद हुआ, दुनिया भर के फैले हुए यहूदी इजराइल में जाकर एकत्रित हो गए और आज 7 दुश्मन देशों से घिरा हुआ इजराइल, किसी की मजाल है कि आंख उठा के देख ले, विश्व में यदि सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी किसी की मोसाद के रूप में है
तो यहूदियों की है। इसलिए बेटा दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्प में बहुत ताकत है। उदाहरण 50 दे सकता हूं। मैं केवल आपको यही कहना चाहता हूं कि आप संकल्पवान बनिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होइए। दुनिया की कोई ताकत आपका करियर अच्छा बनाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि करियर की दिशा में हमारी प्रतिज्ञा का, हमारे लक्ष्य का बड़ा महत्व है। वो ही सब बातें सर भी बता के गए थे आपके लिए। वो इनने कागज और पतंग और इसकी बातें बताई। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे न दे, मगर काबिलियत होती है तो किस्मत बदल जाती है। इसलिए आप अपने अंदर काबिलियत विकसित कीजिए, वो काबिलियत आपकी किस्मत को बदलने के लिए साकार। और बेटा आप लोग तो सब युवा हो, हालांकि युवा तो हम लोग भी हैं। हाँ, तो हमको तुमको बुड्ढे ठुड्डे थोड़ी दिख रहे हैं। एक बात और बता दूं, युवा की कभी कोई उम्र नहीं होती। आदमी उम्र से युवा नहीं होता है, सोच से युवा होता है। नहीं तो कोई उम्र से युवा और बोले आलू से सोना बना दे, आटे को लीटर में तोल दे, जवाब का सवाल कर दे, तो वो उम्र से युवा कोई काम का नहीं। तो उम्र से युवा हो न हो, और यदि यूक्रेन की सड़कों पर भारत के नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर निकल पड़े और रूस के सैनिक यदि उनको सैल्यूट करके आगे बढ़ जाए, तो ऐसा युवा इस देश के लिए काम का है। तो आप लोग तो युवा, युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो, वायु हो जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे आए जिनको उल्टा करना चाहिए, जैसे नशा, उल्टा कर दो तो शान हो जाता है। आजकल के युवाओं में शान हो गई नशा, होता है कि नहीं होता है? ऐसे युवा शब्द के अक्षरों को उल्टा कर दो तो वायु हो जाता है। जैसे वायु वातावरण में भ्रमणशील होती है, पूरब की परिपक्वता से लगाकर पश्चिम की पुनर्रचना तक, और उत्तर की उत्तरापेक्षा से लगाकर दक्षिण की प्रदक्षिणा तक सिर्फ युवाओं का साम्राज्य है। युवा केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि युग निर्माता भी साबित हो रहा है। युवा क्रीड़ांगन का सिरमौर ही नहीं बल्कि समरांगन का रणबांकुरा भी है। युवा कल्पना और सुनीता के रूप में अंतरिक्ष विजेता ही नहीं बल्कि AR रहमान के रूप में वंदे मातरम का नया सांगीतिक उद्घोष भी है। युवा युवराज के बल्ले का विस्फोट ही नहीं बल्कि मित्तल की लोहा मनवाती चोट भी है। और युवा कारगिल पर लहराता तिरंगा ही नहीं बल्कि विश्व सुंदरी का ऐश्वर्य ताज भी है। और ऐसे युवाओं पर हमको नाज भी है। इसलिए आपके लिए कहना चाहता हूं बेटा, मेरी अपनी लिखी हुई पंक्तियों को आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं कि विचारों के उबलते हुए ज्वालामुखी का लावा है युवा, शक्ति के दुग्ध की तपन से तपा हुआ मावा है युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फंकार है युवा, स्वर संगीत और वाद्य की वीणा की झंकार है युवा, एवरेस्ट से ऊंची चट्टान है युवा, गव्वर से गहरी खान है युवा, सागर के ज्वार भाटों और थपेड़ों से युक्त तूफान है युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान है युवा। इसलिए आप अपनी ताकत को स्वयं पहचानिए, आप हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। अब इससे ज्यादा चापलूसी मेरे बाप से नहीं होगी। मैं क्या ट्रैक बदल के चल दिया ना, हास्य का कवि हूँ, जबरदस्ती तुमको गंभीर बातें करने लगा तो बहुत सारे चेहरे मायूस हो गए। टेंशन नहीं पालना बेटा, ये बातें इस इंडक्शन प्रोग्राम को सार्थक बनाने के लिए आपके बीच रखी, नहीं तो मेरा चेचिस ऐसा है ही नहीं, ज़्यादा ओज की बातें करूँ तो फेफड़े बाहर आ जाए। इसलिए अपन ऐसी वैसी बात अब ज़्यादा ना करते हुए, चूँकि वक्त की अपनी मर्यादा है, वक्त की अपनी गरिमा है, फिर कभी मैडम आज याद करेंगी तो मैं तो आपके घर की झाड़ू चाहे जब झाड़ देना कभी भी उपस्थित हो जाऊंगा। बस केवल एक बात आपके लिए कहना चाहता हूं बेटा कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं उजालों की तमन्ना लेकर, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो। जय हिंद, जय भारत। I am totally speechless.
कुछ भी नहीं कह सकते अब सर की इतनी ओजस्वी वाणी के आगे, इतना सुंदर वक्तव्य के आगे मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ भी कहूँ, और ना आप सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि सर ने जिस तरह से आपको, युवाओं को जिस तरह से सर ने उनमें एक ताकत भर दी, एक जोश भर दिया, एक लक्ष्य के प्रति आप लोगों को एक लक्ष्य दिखाया कि कहाँ तक आपको पहुँचना है, तो वो सब चीज़ें जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को कुछ आगे बढ़ाने की अब ज़रूरत है। तो मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सर को एक मोमेंटो प्रेजेंट करें as a thanks. जैसा कि आपको बताया था सर ने, सर एक राष्ट्रीय कवि हैं, तो हम कुछ इस तरह का आयोजन भविष्य में ज़रूर करने की कोशिश करेंगे कि सर उस आयोजन को कवि सम्मेलन जैसे हम करने की कोशिश करेंगे, सर के गाइडेंस में, सर के मार्गदर्शन में, तो उसको सर होस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको बहुत इन्जॉय करेंगे। और एक हास्य कवि सम्मेलन सर से एक बार जोरदार तालियों से सर से रिक्वेस्ट करिए कि हमको हास्य कवि सम्मेलन एक चाहिए। I would like to request Sushmita madam, our NCC head, to give some information about NCC activities. Ma'am, please. जय हिंद to all of you. आवाज़ नहीं आ रही है? Good. So first of all, I would like to thank Commerce Department, HOD sir and madam who invited me. So my name is Lieutenant Professor Sushmita Barla. I am Associate NCC Officer in IPSA. So I'll give you brief introduction about NCC. What is NCC? What are the activities is being performed, and what are the certificate you will get after this course, and what are the benefits of your certificates. Okay, so we will start. So this is the logo of NCC. As you can see, there are 3 colors in it, and it represent different wings also. So red color is for army wings, navy color is for navy, and sky blue is for air force. And you are able to see there is a lotus flower around in the middle. It represents 17 directorates of the NCC, and at the bottom it's written एकता और अनुशासन. So जो भी कैडेट्स यहाँ पे आते हैं उनको एकता और अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है. तो यही चीज़ जो है NCC हमें सिखाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. जब फर्स्ट टाइम NCC स्टार्ट हुआ था 1948 15th of जुलाई में, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन दिल्ली. सो जितने भी एक्टिविटीज़, ऑल दी ड्रिल्स, जितने भी एक्टिविटीज़, कैम्प्स, ऑल आर इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिल्ली. दिल्ली इज़ दी हेडक्वार्टर. And as earlier I described you, it is a tri-color. 3 कलर हैं इसमें, रेड, नेवी ब्लू, स्काई. सो ये 3 विंग्स को डिनोट करते हैं. एंड हमारे IPS में जो है आर्मी विंग्स अवेलेबल है, और जो कि गर्ल्स कैडेट के लिए अवेलेबल है. 1 MP गर्ल्स बैटेलियन के अंडर ये आता है IPS एकेडमी. सो 1 MP गर्ल्स बैटेलियन में गर्ल्स के लिए NCC का प्रोविज़न है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके, सो मोटो ऑफ NCC इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन. और NCC में जो भी कैंप कराए जाते हैं, डिफरेंट एरिया, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस से कैडेट्स आते हैं, कैंप अटेंड करते हैं. आप साइड में आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है. आई एम स्टैंडिंग इन द फायरिंग रेंज एंड स्टूडेंट आर ऑल्सो स्टैंडिंग. आप देख सकते हैं कितने डिसिप्लिन मैनर में वो खड़े हैं यूनिफॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको राइफ़ल के साथ आपको पूरी एक्टिविटी करनी होती है, फायरिंग करनी होती है. तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी है. नेक्स्ट साइड प्लीज़. ओके, सो कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये एक मुख्य सिद्धांत है NCC में. आपको आपके सीनियर से जब भी कोई ऑर्डर मिलता है, आपको
उसे स्माइल के साथ आपको ओबे करना होता है, ओबे विथ स्माइल। आप अपने सीनियर को मना नहीं कर सकते, अपने ऑफिसर्स को मना नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। सो यहाँ पे जब कैडेट्स आते हैं उनको हर चीज़ अपनी जो सीनियर की ऑर्डर होती है वो स्माइल करके वो फॉलो करनी होती है। बी पंक्चुअल, आपको हमेशा पंक्चुअल रहना पड़ेगा क्योंकि आप एक आर्मी के पार्ट हैं। सो आपने देखा होगा आर्मी वाले कितने पंक्चुअल होते हैं। जब भी मैदान में जंग छिड़ जाती है तो जो आर्मी वाले होते हैं वो हमेशा अपने बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। तो आपको पंक्चुअलिटी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ आर्मी की जो एनसीसी है वो चीज़ आपको कॉलेज लेवल पे ही आपको ट्रेनिंग करना सिखा देती है या ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वर्क हार्ड एंड विदाउट फस। यहाँ पे आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, कहीं पे आपने सुना होगा हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क भी करना है बिकॉज यू हैव टू बी फिज़िकली फिट। आपको अपने फिजिक को भी फिट रखना है। सो विथ योर स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू हार्ड वर्क ऑल्सो। ओके, मेक नो एक्सक्यूजेस एंड टेल नो लाइज। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। जब भी क्लासेस लगती है, जो भी आपको ऑर्डर मिलते हैं वो फॉलो करना है। कैंप में जाना है तो पंक्चुअलिटी में जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो फॉलो करना है। जो अपने सीनियर्स बोलते हैं वो सारी चीज़ें करनी रहती है। आपको जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हैं वो सारे आपको परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, सो एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या होते हैं? ड्रिल होते हैं जिसमें मार्चिंग के सारे आपको बताए जाते हैं, जैसे दाएं मुड़, बाएं मुड़ एंड खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। ऑल डिसिप्लिन मैनर में आपको किस तरीके से करना होता है, मार्च पास्ट किस तरीके से करना होता है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। देन वेपन ट्रेनिंग में फायरिंग है, फायरिंग के बारे में बताया जाएगा। राइफ़ल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइफ़ल होते हैं जैसे SLR, तो इनके बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है। उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताए जाएंगे। राइफ़ल को आप कैसे खोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एंड राइफ़ल में कितने मैगजीन्स होते हैं, कितनी गोलियां उसमें भरी जाती हैं, इन सब के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस फिज़िकल फिटनेस भी चाहिए आपको, तो उसके लिए ऑब्स्ट्रैकल की ट्रेनिंग दी जाती है। अगेन ड्रिल तो होता ही है, मार्च पास्ट होता है फिज़िकल फिटनेस के लिए, एंड मैप रीडिंग होता है। मैप रीडिंग इज़ जब सोल्जर मैदान में जंग कर रहा होता है तो उसके पास नेटवर्क नहीं होता है, तो एक मैप के सहारे और एक जस्ट कंपास के सहारे वो अपना पोजीशन कैसे वो ढूंढ सकता है और उस जगह से बाहर निकल सकता है। तो मैप रीडिंग इज़ वही है कि अपना पोजीशन निकालना होता है ग्राउंड पे एंड मैप पे। तो ये चीज़ एनसीसी आपको ट्रेन करती है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताती है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड बेस्ड जो भी ट्रेनिंग मिलती है, बोटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, लैंड बेस्ड में ये ट्रेनिंग मिलती है। जब भी आप कैंप में जाते तो इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। देन वाटर बेस्ड, बोटिंग, तो ये सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, YAP एक सबसे बड़ा कैंप होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि 10 कंट्रीज़ हैं, जहाँ से इन 10 कंट्रीज़ में से हर एक कंट्री से कैडेट्स अटेंड करते हैं इस कैंप में, और कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम रहता है। तो ये इन कंट्रीज़ में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, वियतनाम, तो इन सारे कंट्रीज़ में सारे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। सो आप अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मौका भी मिलता है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ भी आप विज़िट कर पाएँ। नेक्स्ट प्लीज़। So apart from the drill, physical activities, we are also in social services. So social service में tree plantation, adult education, rally, environment rally वगैरह करते हैं। old home visit, तो ये सारे एनसीसी में सोशल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म किए जाते हैं।
Next, please. Okay, now benefits of NCC. So NCC जो है, it is for 3 years. 3 साल की NCC होती है. 2 years करने के बाद B सर्टिफिकेट आपको मिलता है. And after completing 3 years, you are eligible for C सर्टिफिकेट. So जो benefits हैं, IA में आपने सुना होगा, IA में वहाँ पे NCC के जो C सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए 32 सीट्स ऑलरेडी वेकेंट रहते हैं, उनके लिए कोटा रहता है 32 NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए. देन CDS एग्ज़ाम में इफ़ यू आर B and C सर्टिफिकेट होल्डर, आपको रिटन एग्ज़ाम देना नहीं होता है, जो कि UPSC के अंडर होता है. तो ये सारी बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप NCC करते हैं. तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ ये RDC कैंप का पिक्चर है. RDC इज़ रिपब्लिक डे कैंप, जो हर साल दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. और वहाँ पे बहुत अच्छे कैडेट सेलेक्ट होते हैं. बहुत ही मेहनत करने के बाद ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है. उसके बाद वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने वो राजपथ में ड्रिल करते हैं. लास्ट ईयर हमारे यहाँ से आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट से सिमरन गई थी. लास्ट ईयर उन्होंने अटेंड किया है RDC कैंप. सो आप उनसे भी उनका एक्सपीरियंसेस ले लीजिएगा. वो अभी आने वाले हैं. वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर अटेंडिंग, क्या माहौल रहता है, कैसे वो कितना कब उठते हैं. 4 बजे उनको उठना पड़ता है और पूरी ड्रिल करनी पड़ती है, और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं. तो ये सारे वहाँ कैंप पे वो करते हैं, और बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं जो वहाँ पे उनको अटेंड करना होता है. नेक्स्ट प्लीज़. ये NCC के कैडेट्स जो यहाँ IPS एकेडमी के 12 कैडेट्स को रैंक मिला. तो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलेज के कैडेट्स खड़े हैं. सामने जो है मेजर मैडम हैं 1 MP गर्ल्स बैटालियन, एंड मैं भी उनके साथ हूँ. नेक्स्ट प्लीज़. दिस इज़ रैंक सेरेमनी इन आवर 1 MP गर्ल्स बैटालियन. सिमरन कौर आप शायद जानते होंगे, उनको आपने देखा भी होगा. दैट साइड द पिक्चर सिमरन कौर खड़ी हैं, एंड शी इज़ सीनियर अंडर ऑफिसर सौम्या नायर. शी इज़ फ्रॉम BTech एंड सौम्या इज़ फ्रॉम योर डिपार्टमेंट. सो इनको रैंक सेरेमनी पे रैंक भी मिला है. नेक्स्ट प्लीज़. और यहाँ पे सिमरन है, आप देख सकते हैं CM सर के साथ एंड मोदी जी के साथ उनकी पिक्चर है. जब वो RD कैंप के लिए उन्होंने तैयारी की थी, कैंप अटेंड किया था, तो उन्हें मौका मिला था PM एंड CM सर से मिलने का. नेक्स्ट प्लीज़. ये योगा एक्टिविटी चल रही है आपके IPS एकेडमी के गर्ल्स कैडेट, ऑल आर परफॉर्मिंग योगा. नेक्स्ट प्लीज़. एंड शी इज़ आवर प्रिंसिपल मैम Dr. Premlata Gupta, appreciating for attending RDC camp. Next please. Again this is activity performed by NCC cadet. ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. नुक्कड़ नाटक जो राजवाड़ा पे किया गया, एंड साइकिल रैली ये चौथराम पे. जी, थैंक यू सो मच. Thank you very much, ma'am, Sushmita madam, for sharing such a beautiful information of NCC with us. Thank you so much. Now I request Ajay Sahu sir, on behalf of NSS department. Please come, sir. NSS नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना, इसकी स्टार्ट जब हुआ था, ये सबसे पहले अब PDF चालू होगी. NSS डिपार्टमेंट की हेड है नेहा मैम, एंड वो नहीं आ पाई हैं, इसीलिए उन्होंने मैसेज दिया है कि हम आपके सामने उनका मैसेज प्रेजेंट कर सकें कि सोशल सर्विस होता क्या है. तो वो आपके समक्ष है, आप लोग पढ़िए. समाज सेवा की प्रथा प्राचीन काल से मानव सभ्यता के साथ चली आ रही है.
जिसका हमेशा से यह उद्देश्य रहा है कि लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही समाज के प्रति तय हो, जिससे कि समाज में उन्नति के साथ साथ लोगों के अंदर मानवता और जनसेवा की भावना उत्पन्न हो, ताकि आपसी सद्भावना लोगों में बनी रहे। और जब भारतीय इतिहास और संस्कृति की बात होती है तो हम प्राचीन काल से देख रहे हैं कि हमारा विश्वास वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, जहाँ पर हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। मतलब सोशल सर्विस, आप सब यूथ है, इसका उद्देश्य हमेशा से ये रहा है एनएसएस का कि युवाओं को समाज से जोड़ना, समाज में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसके साथ आपको जोड़ना, और उसमें जो समस्या है उसका समाधान क्या है, आप सब उसमें अपना भागीदारी और अपनी जिम्मेदारी निभा सके। प्लीज़, हम किन किन फील्डों में काम करते हैं मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। पहले तो हम मोस्टली 3C पे काम करते हैं। 3 C's, केयरिंग, क्योरिंग एंड चेंजिंग। केयरिंग, जिसको देखभाल की आवश्यकता है। क्योरिंग, जिसको उपचार की आवश्यकता है। चेंजिंग, जिसको बदलाव की आवश्यकता है। जैसे बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, उनको देखभाल की आवश्यकता होती है। कोई पेशेंट हो गया किसी तरह का, तो उनको किसकी ज़रूरत होती है? क्योरिंग की ज़रूरत होती है। चेंजिंग, किसी में कोई गलत आदत है या फिर कुछ जो असामाजिक है तो उसको बदलाव की आवश्यकता होती है। इन 3 C's पे हम काम करते हैं। प्लीज़ आगे। These fields, हम एजुकेशन पे काम करते हैं। एजुकेशन पे काम करते हुए IPS एकेडमी की तरफ से ज्ञान विस्तार की क्लास चलाई जाती है, जहाँ पास आसपास के बस्ती के बच्चे आते हैं, जहाँ पर हम उनको एजुकेशन देते हैं। और उसके साथ साथ हम एजुकेशन रैली निकालते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इन्वायरमेंट प्लांटेशन ड्राइव, यहाँ पे वर्ल्ड पे नेशनल प्लांटेशन डे पे प्लांट लगाते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है मेरा माटी मेरा देश, उस पर भी हमने प्लांट लगाया, तो उस पर भी हम काम करते हैं। लीगल एंड सोशल अवेयरनेस, हम लीगल अवेयरनेस भी करते हैं, उसमें रैलियाँ करते हैं, लोगों को उनके अधिकार बताते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, उनके ड्यूटीज़ बताते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स का आप बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, उस पर भी हम काम करते हैं। एंड प्लीज़ बैक, मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, बॉडी चेकअप कैंप होता है, डेंटल चेकअप कैंप होता है, आई चेकअप कैंप होता है। तो इन सारे चीज़ों पे हम काम करते हैं। स्वच्छता पे हम काम करते हैं। जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक बनाते हैं। और डोमेस्टिक वायलेशन पे हम काम करते हैं। नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और रिपब्लिक डे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे हम कुछ नया करते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि समाज के प्रति और गांधी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में पता चले, कि गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके आचरण को हम फॉलो करते हुए कहाँ जा सकते हैं। एंड राखी वर्कशॉप हो गई, यूथ डे हो गया। IPS की तरफ से मैराथन स्पॉन्सर किया जाता है, जिसमें इंदौर में बहुत सारे मैराथन होते हैं, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, IPS को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कल्चरल प्रोग्राम होता है। कल्चरल प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर उनको कुछ दिक्कतें आ रही हो, वो कम्प्लीटली मतलब सही ना हो, उनके लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं। सामर्थ्य करके हम काम करते हैं। उसमें आउटरीच प्रोग्राम होता है, जिसमें हम विलेजेस में जाते हैं, स्लम एरियाज में जाते हैं, उनके समस्याएं सुनते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। एंड NGO पे जाते हैं। स्पोर्ट्स में IPS की तरफ से खेलो इंडिया प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा आयोजन किया जाता है। ब्लाइंड बच्चों का क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पास हम मतलब उनको स्पेस देते ताकि उनको ये भी हुनर सामने आ सके। डोनेशन ड्राइव होता है, जहाँ पास हम ब्लैंकेट डोनेट करते हैं झाबुआ जाके, बैकवर्ड एरियाज में जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है। एंड NSS अवार्ड सेरेमनी होती है, जहाँ पास सारे बच्चों को उनके काम के लिए अवार्ड दिया जाता है और उनको क्या बोलते हैं प्रोत्साहित किया जाता है। प्लीज़ नेक्स्ट। कुछ फ़ोटोज़ है, कुछ ये पूरे वर्क है, ये एजुकेशन पे हम जो काम करते हैं उसकी फ़ोटोज़ है। प्लीज़ नेक्स्ट। इन्वायरमेंट पे जो हम काम करते हैं वो ये सारी उसी की फ़ोटोज़ है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम मैं नहीं कर पाया, तो ये मिनिमम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ।
प्लीज़ नेक्स्ट। लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे हम रैलियाँ निकालते हैं और उनको स्कीम्स का जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में हम उनको बताते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट। ये मेडिकल कैंप हो गया जहाँ पर ब्लड डोनेशन, आई चेकअप, जो भी मैंने बताया उन सब पे हम काम करते हैं। प्लीज़। ये जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम करते हैं, जहाँ पर से सेमिनार होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये डेफ वुमेन्स का सेमिनार हुआ था, उसकी फ़ोटोज़ हैं। प्लीज़। नुक्कड़ नाटक होता है, लीगल चीज़ों पे होता है, डोमेस्टिक वायलेशन पे होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे होता है, जो भी सोशल इशूज़ होते हैं हम उस पर काम करते हैं और उसी पे नुक्कड़ नाटक तैयार करते हैं। प्लीज़। नेशनल फेस्टिवल्स, ये इंडिपेंडेंस डे का है, कुछ है वो खेलो इंडिया के हमारी एनएसएस की बहनों ने काम किया था, एंड राखी एग्जीबिशन का है, तो इन पर भी हम काम करते हैं। डोनेशन ड्राइव, हम ब्लैंकेट डोनेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं, लोगों से रेज करते हैं जो उनके रोज़ मतलब जो सामान यूज़ नहीं करते वो हमें डोनेट कर सकते हैं, हम किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा देते हैं, तो उस पर भी हम काम करते हैं। प्लीज़। सामर्थ्य प्रोग्राम, जहाँ पास कुछ बच्चे मेंटली चैलेंज होते हैं जो कम्प्लीटली सही नहीं होते, तो उनके लिए भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़े साहब के बर्थडे के दिन तो ये भी हमारा काम है। एंड बच्चों के वॉलेंटियर्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, अवार्ड सेरेमनी करते हैं, ताकि बच्चे और अच्छे से और आगे भी काम करें और अच्छे मेहनत से समाज से जुड़े। प्लीज़। एंड थैंक यू। और आप लोगों को एनएसएस के बारे में और कुछ जानना है तो आप QR स्कैन कर सकते हैं, जिसमें आपको एनएसएस के बारे में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो आप लोग करिए। एंड मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब एनएसएस आइए, हम सब मिलके समाज को जो दे सकते हैं और समाज में जो समस्याएं हैं हम उसका समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यू ऑल इनवाइटेड इन एनएसएस डिपार्टमेंट। थैंक यू। Thank you very much, Ajay Sahu sir. Now we have library head Sapna Jojare madam. I request ma'am to please share some information about library. Thank you, Lakhotia ma'am. Invite me for the today's your introduce to our induction program. Respected Dean sir, respected Principal ma'am, respected faculty members and dear guest also, then my dear students, myself Sapna Jojare, head librarian in Academy, IPS Academy, Indore. Today is your first day in our academy, so we want to introduce our Central Library, Department of Library and Information Science for all the students and my new dear students. So we are introduce our Central Library information. We are maintaining 29,000 books in our Central Library related to all departments like science, physics, chemistry, bio, commerce and fashion designing, other extra also. We are maintain 35 hard copy journals in our library. We are using e-resources for the students. It's a very useful for the students for their research, then their projects, then their reading, then their course syllabus also. Novels, we are maintain also novels, career guideline books, e-resources, and we are maintaining a digital library also in our library. Computer lab and photocopy facility we are maintain also. We have maintained encyclopedia, CDs, competitive books, general books, bounded journal. We can explain our bounded journal. Bounded journal is a lot of before years journals. If you want to search related to your subject research, so you can use our bounded journals. We are provide the e-resource facility, then like Enlist, Delnet, Nimbus and digital library also. It's a new platform for our students because hard copy then e-resources also is necessary for your study, your syllabus, then your career also.
after that, I want to introduce our central library. It's a rules for the central library because क्या होता है कि भाई जब when we are come to the our central library हम कहते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए. It's a new for yours. तो मैं इसलिए अपने आप को अपने सेंट्रल लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताना चाहूँगी. सेंट्रल लाइब्रेरी में मतलब ओपन होती है 9 to 5, ठीक है. इफ़ यू वांट अ बुक इशू देन रिटर्न, सो इट्स अ टाइम फॉर अ books return 9 to 5. Student must read library rules and regulations. Keep your personal books not allowed in our library. Your bags, mobile not allowed in library. If you want to keep your mobiles and bags, so in your own responsibility. We are not responsible for electronic device like mobile, then e-resources like computer, then laptop also. Okay, we are giving a book issue then return facility. So we are introduce UG student. We have used 2 books for the students UG, then 3 books for the PG students. लेट फीस, बिकॉज लेट फीस का बड़ा इशू होता है स्पेशली कॉमर्स के साथ में. सो आपने यदि बुक इशू कराई है, ओके, यदि ड्यू डेट है उसका, तो इट मस्ट शुड बी कि भाई आप उसे प्रॉपर टाइम पे क्या करें, रिटर्न करें. अदरवाइज 5 रुपीज़ पर डे फाइन इट विल बी चार्ज ऑन योर बुक्स. ठीक है, बाद में स्टूडेंट बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, so other one is that we are offer after graduation course also students. ये जो कोर्स है ये आफ्टर ग्रेजुएशन का कोर्स है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बीलिब. ठीक है, व्हेन यू आर कंप्लीटेड योर बीकॉम, सो यू कैन choose this one course, Bachelor of Library and Information Science. It's a 1-year course affiliated by DAVV. ये 1 year का कोर्स है. जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए. तो उस पॉइंट पे आप अपने करियर को चूज़ करते हैं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स MBA करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं. सो बीलिप जो एक अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाने का. सो इफ़ यू वांट join this course after your graduation, you can contact me. So please welcome our IPS Academy. You are a new member of us, so congratulations for this one. Then best of luck. Thank you so much. Now I would like to request Yogita madam for vote of thanks. Ma'am, please. Good afternoon, respected guest of the day, Dr. Lakshmikant Tripathi sir and Dr. Shyam Sundar Palod sir, respected principal ma'am, Dr. Premlata Gupta, and all respected faculties and dear students. I, Dr. Yogita Chandel, feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special day. On behalf of the department, I convey my regards and heartily thanks to our guest, Dr. Lakshmikant Tripathi, Dean, Students Welfare, DAVV Indore, for sharing your wonderful experience and the knowledge for the enlightenment of the students. Thank you so much, sir, for the providing your precious time in a very tight schedule and for your interesting address. Also, I would like to thank our guest, Dr. Shyam Sundar Palod, Principal Sanskar College, and also my friend Indore, for making this day lively, happening, memorable with your exclamatory poems and very, very nice words also, and inspiral words for the students. Thank you so much, sir, for your wonderful presence. We are lucky that a national level famous personality has accompanied us. I would also thank our respected principal ma'am, Dr. Premlata Gupta ma'am, for their guidance and the moral support and also the inspiring words.
I would like also I would also forward the thanks to the Lieutenant Shushmita Barla ma'am, Head NCC Unit, Mrs. Sapna Jajore, in charge and the Head Library Science, Mr. Jiten Verma sir, Head E-Learning Department, and Mr. Ajay Kumar Sahu, NCC Executive, on behalf of Mrs. Neha Sharma, Head NCC Unit. Thank you all of you for their informative lectures. Last but not least, I am thankful to all the departmental faculties, all the volunteers and our lovely students for making this program successfully through their dedication. We are also grateful to the management, AV Studio technical team and organization for the supporting us. Once again, thank you for all for your support. Have a wonderful day ahead. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.